Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Hey, hello and welcome. Today in this video lecture, we are going to solve class 10 physics, the past papers or solution of 2019 paper 2. And for this paper in this video, we are going to solve the questions that are related to simple harmonic motion and waves. So let's see the first question of 2019. You are given with an assignment to operate a radio station of your school news activities. If your school allocated a wave frequency of 80 Hz, this is the frequency we are given. We have to calculate the wavelength and time period. Two things we have to calculate, and the speed of light in this question is 3 exponent 8 meters per second. So let's make the data out of this question. So first of all, we have frequency, that is 80 hertz. Then we have the velocity, that is 3 exponent 8 meter per second, and we have to find the wavelength as well as the time period. So first of all, let's find out the time period. T is equals to 1 over f. So f is 80 hertz, so 1 over 80 will be equals to time period. So 1 over 80 is equals to 0.0125 seconds. So the time period is 0.0125 seconds. Secondly, we have to find the wavelength. So wavelength is equal to v divided by f. So velocity is 3 multiplied by 10 raised to the power 8, and frequency is 80. So 3 exponent 8 को हम divide कर देते हैं 80 से. So the correct answer is 3.75 10 raised to the power 6 meters. So we have find the value of wavelength and the time period of the wave. Okay, so here we have another question in the same paper 2019. So let's solve this. A simple pendulum is attached with a 4-meter long string. So we have the length of the pendulum, that is represented with L. Find the time period of the pendulum if it is placed in an elevator. So we have to find the time period of the pendulum, and this pendulum is placed in an elevator that is moving upward with an acceleration of 8 meter per second square. So this is the acceleration. And secondly, if the elevator is moving downward, so the elevator is moving downward with an acceleration of 8 meter per second, then what will be its time period? So we have to find two time periods. Once when this pendulum is placed in an elevator moving upward, and secondly we have to find the time period when this pendulum is placed in an elevator moving downward. So let's recall the formula of time period. We know that time period is equals to 2 pi square root L over G. सो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है फॉर द टाइम पीरियड. सो यहाँ हमारे पास दो केस हो जाएंगे. वन केस दैट इन विच द एलिवेटर इज मूविंग अपवर्ड, जो कि हमें फर्स्ट पार्ट के अंदर पूछा गया है. सो फॉर दैट इट्स माइनर सी चेंज हो जाएगी हमारे इस फॉर्मूला के अंदर कि अगर एलिवेटर अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है, सो डिनोमिनेटर में जो हमारे पास जी है उसमें
इस एक्सेलरेशन में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे द एक्सेलरेशन ऑफ द एलिवेटर। एंड सेकेंडली जो हमें सेकेंड पार्ट में कहा गया है कि एलिवेटर इज मूविंग डाउनवर्ड, सो फॉर दैट we will find the time period by using this formula 2 pi square root L over g plus a, because downward direction में acceleration है and this gravitational acceleration is also in downward direction, same direction में acceleration हो गई दोनों, इसलिए हमने यहाँ प्लस किया। जबकि फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने सब्ट्रैक्ट किया है बिकॉज एलिवेटर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है एंड द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड लेंथ वी हैव इज 4 मीटर्स। सो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। लेंथ हमारे पास जो थी इस पास क्वेश्चन के अंदर दैट इज 4 मीटर एंड द वैल्यू ऑफ जी इज 9.8 meter per second square and finally the value of A is 8 meter per second square. So first part के लिए जब हम time period calculate करेंगे so T will be equals to 2 pi time period will be equals to 2 pi square root length is 4 divided by g minus a that will be 9.8 minus 8। इसे हम सॉल्व कर लेंगे। जबकि सेकेंड पार्ट में टाइम पीरियड विल बी इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर रूट L is 4 divided by g plus a that is 9.8 plus 8। तो इन दोनों एक्सप्रेशंस को सॉल्व करके हम टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं। So when the elevator is moving upward, the time period of that pendulum will be 9.366 seconds, while when the elevator is moving downward, the time period of that pendulum will be 2.978 seconds. Now let's come to 2018 paper 2 and we are going to solve the question from simple harmonic motion and waves. The given diagram shows 3 waves, wave 1, wave 2 and wave 3, covering the same distance from point A to B in 2 seconds. All the 3 waves cover same distance in same time. So here we have 3 different types of waves. First of all, we have to write the frequency of any 2. So we know that frequency F is the number of waves in unit time. The number of waves divided by unit time is the frequency. So in all 3 waves we have to count the number of waves and all 3 waves take 2 seconds to reach from point A to B. So we can divide all 3 number of waves with time. So let's see the first wave 3. Wave starts from here and it ends here. So this is 1 wave, then this is 2 waves and this is 3 waves and this is 4 waves. So for wave number 3 the frequency will be equals to 4 waves divided by 2 seconds. So the frequency will become 2 hertz. Then let's see the wave 2. Wave starts from here and the first wave ends here. So this is 1 wave and this is 2 waves. So frequency will be equals to number of waves divided by time. So this will be equals to 1 hertz. So finally we will count the number of waves in wave 1. So wave starts from here. This is 1 wave, then 2 wave, then this is 3 waves, 4, 5, then 6. So total of we have 16 waves in wave 1 and the time taken by these 16 waves is
2 seconds, so the frequency of this first wave becomes 8 Hertz. So this is the answer for part A. Then we have option B. Which of the following wave 1, 2, 3 has the greatest speed? So we have to identify these three waves, that which has the largest speed and why. So let's recall one thing, that all three waves covers same distance, same distance from point A to B. So distance covered by all three waves is same, and all three waves take 2 seconds to cover this distance. This means that speed is equals to distance upon time. So all waves cover same distance in the same time. This means that wave 1, wave 2 and wave 3 all will have the same speed. तमाम वेव्स की जो स्पीड है वो सेम होगी, बिकॉज तीनों वेव्स जो कि ट्रैवल कर रही थी फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, दे हैव कवर्ड द सेम डिस्टेंस इन द सेम टाइम. So here we have another question from the same chapter, simple harmonic motion and wave. So in this question we have to give 5 differences between mechanical and electromagnetic waves. So the main difference between these two types of wave is that mechanical waves require medium. Without any medium, the mechanical waves are not able to propagate through that medium. So mechanical waves are those that require medium for their propagation. While for electromagnetic wave, they do not require any medium. These electromagnetic waves are able to travel through solids, through liquids, through gases, or without any medium or through vacuum. So electromagnetic waves require नहीं करती किसी मीडियम को, जिसका मतलब ये हुआ कि they can travel through vacuum as well. So ये हो गया हमारा first point of difference between these two waves. Then let's see the production of these waves. So mechanical waves are produced by the disturbance or vibrations in medium. किसी भी मीडियम के अंदर डिस्टर्बेंस या वाइब्रेशन होने की वजह से वाइब्रेशंस की वजह से मैकेनिकल वेव प्रोड्यूस होती हैं. जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रोडक्शन की बात करें, सो दीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल. जब भी किसी चार्ज पार्टिकल्स को हम एक्सेलरेट करवाएं, सो एक्सेलरेशन उन चार्ज पार्टिकल्स की जो है वो एक्सेलरेशन की वजह से दैट चार्ज पार्टिकल विल emit electromagnetic radiation. So this is the production of electromagnetic waves. Then we have got another difference between these two waves, such that mechanical waves, all mechanical waves have different speed. All mechanical waves have different speed. Like for example, mechanical wave प्रोड्यूस होती है स्प्रिंग के अंदर, या mechanical wave प्रोड्यूस होती है वाटर में, और mechanical waves are produced in a rope. So all three waves are mechanical, but all three waves will travel through the medium with different speeds. But for electromagnetic waves, all electromagnetic waves have the same speed. All the electromagnetic waves will travel through the medium with the same velocity or same speed. हर electromagnetic wave की जो speed है वो हमेशा same रहेगी. That is the speed of light 3 exponent 8
meters per second. So if it is in infrared or light waves or ultraviolet, or it is the thermal radiation, all X-rays, gamma rays, all these electromagnetic radiations have the same speed. Let's see another difference between these two types of waves, that mechanical waves can be transverse or can be longitudinal. मैकेनिकल वेव जो है वो ट्रांसवर्स नेचर की भी हो सकती हैं, जबकि मैकेनिकल वेव्स लॉन्गिट्यूडनल नेचर की भी पॉसिबल हो सकती हैं। जबकि अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को देखें, सो दीज ईएम वेव्स कैन ओनली बी ट्रांसवर्स नेचर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो नेचर है वो हमेशा ट्रांसवर्स होगा, इन अ सेंस दैट इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स the electric field and magnetic field are oscillating perpendicular to each other. So ये हमारे पास 4 difference हो गए. So for the last point we can actually mark some definitions regarding examples regarding mechanical and electromagnetic wave. So mechanical waves की examples में we can have water waves, we have waves on a rope or spring. Similarly, last big example we can take, that is sound, that require medium, and it is a longitudinal nature of wave, so this is mechanical wave. While for electromagnetic waves we have X-rays, that are EM waves, we have gamma rays, that are electromagnetic waves, and we can say light wave, that is electromagnetic, and we have infrared, and we can list so many electromagnetic waves here. So these are the example of electromagnetic waves. So now let's come to another question, and we are now in 2017 paper of class 10 physics, and we are going to solve the simple harmonic motion and wave question in this paper. So जो क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है, इस क्वेश्चन के अंदर we have a pendulum of length 1 meter and it has a time period of 2.01 seconds. It is allowed to swing at a height of this on Mount Everest. Calculate the gravitational acceleration of the pendulum. So इस डेटा को यूज करके हम gravitational acceleration find out करते हैं. So we know that the formula for time period of a pendulum is 2 pi square root L over G. So same formula को जब हम G कैलकुलेट करने के लिए फाइंड आउट करें, तो ये फॉर्मूला हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाता है 4 pi स्क्वायर L over T स्क्वायर. सो ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. सो वैल्यूज़ को जब हम पुट करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 3.14, बिकॉज पाई पे स्क्वायर मौजूद है, लेंथ इज 1 डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड स्क्वायर, दैट इज 2.01 स्क्वायर. So from this expression the value of G comes out to be 9.77 meters per second square. So this is the answer for this part 1, that value of G we have to find, that comes out to be 9.77 meters per second square. Now let's see the part 2 of this question. Explain the difference if this pendulum is allowed to swing at the sea level. So right now this pendulum was oscillating at the top of the Mount Everest, that is around 9,000 meters from above the sea level. So we know that at sea level the value of G, that is 9.77
8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, जबकि यहाँ जो हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आई थी इट इज़ 9.77 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, जबकि सी लेवल पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इट इज़ 9.8. सो डिफरेंस ऑब्वियसली हमारे पास आना था बिकॉज वी नो दैट द gravitational acceleration depends on the distance above the sea level. जितना हम सी लेवल के ऊपर जाएंगे उतना ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डिक्रीज होती जाएगी. सो एज वी कैन सी फ्रॉम दिस क्वेश्चन इन पार्ट 1 कि हम 9000 मीटर्स अबव हैं सी लेवल से. सो वैल्यू ऑफ जी जो है वो हमारे पास सी लेवल के मुकाबले में कम आई है. Give a reason for the difference noted in part 2. सो हमने जैसे अभी यहाँ पर डिफरेंस नोट किया, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अर्थ पे एट द सी लेवल इज 9.8, जबकि माउंट एवरेस्ट पे टॉप पे हमारे पास रिजल्ट आया 9.77. देयर इज अ माइन्यूट डिफरेंस बिटवीन दीज टू वैल्यूज. गिव अ साइंटिफिक रीजन फॉर दिस डिफरेंस. तो साइंटिफिक डिफरेंस मैंने पार्ट 2 में भी एक्सप्लेन किया कि डिफरेंस का जो रीज़न है वो ये है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो डिपेंड करती है ऑन हाइट अबव द सी लेवल. हाइट पे डिपेंड करती है द वैल्यू ऑफ जी, जिसका फॉर्मूला हम यहाँ फ़िलहाल मेंशन तो नहीं कर रहे, बट वी कैन ओनली रिमेंबर दिस फैक्ट फ्रॉम आवर क्लास 9 दैट द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन द हाइट अबव द सी लेवल. जितना हम सी लेवल से अबव मूव करेंगे द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन decreases with the square of the distance from the center of the earth. So in the same year 2018 we have got another question from the simple harmonic motion and wave. Write the formula for the speed of the wave. So जनरल फार्मूला जो स्पीड ऑफ द वेव के लिए v is equals to lambda f. स्पीड ऑफ द वेव इज अ प्रोडक्ट ऑफ वेव लेंथ एंड फ्रीक्वेंसी. सो ये हमारे पास एक जनरल सा फॉर्मूला है जो कि यहाँ पार्ट 1 के अंदर पूछा गया है. नेक्स्ट पार्ट को अगर हम देखें, सो वेव्स आर ओनली द मीन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर विदाउट द ट्रांसफर ऑफ द मैटर इन द मीडियम. कि जब भी किसी मीडियम से वेव ट्रैवल करेगी, वेव only carries energy with it without transferring the matter or the material of the medium. So इसी बात को हमें 4 एग्जाम्पल्स के थ्रू यहाँ पर एक्सप्लेन करना है. तो हम यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल्स कोट करते हैं जिससे इस बात को हम एक्सप्लेन कर सकें. Okay, so first of all we have the example of water waves. So water waves की एग्जाम्पल के थ्रू हम इसी बात को एक्सप्लेन करते हैं कि वेव हमेशा एनर्जी को कैरी करती है विदाउट ट्रांसफरिंग दी पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम. सो लेट्स से इस पॉइंट ए पर हमने डिस्टर्बेंस क्रिएट की, जिसकी वजह से इस वाटर के अंदर डिस्टर्बेंस की वजह से वाटर वेव्स जनरेट हुई जो कि इस डायरेक्शन के अंदर ट्रैवल कर रही है टूवर्ड्स राइट. In the path of this water wave there is an object floating at the surface. So जैसे ही water wave इस object के पास से गुजरेगी, the crust of this water wave will move this object upward while the trough passing through this object that is floating will move that object downward. तो जैसे जैसे wave इस right direction में move करेगी, वैसे वैसे यहाँ जो ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है वाटर के सरफेस के ऊपर, वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मूव करेगा. दिस शोज दैट कि जब वाटर वेव्स ट्रैवल करेंगी टूवर्ड्स राइट, सो द ऑब्जेक्ट और द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम विल ओनली ऑस्किलेट मेकिंग एट इट्स फिक्स पोजीशन. अपनी फिक्स पोजीशन पे रहते हुए पार्टिकल सिर्फ ऑस्किलेट करेंगे विदाउट changing its position or without moving in the direction of wave. सेकेंड एग्जाम्पल में हम एक रोप की एग्जाम्पल ले लेते हैं और इस रोप के ऊपर जब हमने स्ट्रेट इसको यहाँ से होल्ड किया हुआ है, जबकि इसका जो दूसरा एंड है वो हमने वॉल के साथ फिक्स कर दिया.
इस रोप के ऊपर हमने पॉइंट पी कोई भी पार्टिकल अज्यूम कर लेते हैं, और जब हम यहाँ से रोप के दूसरे एंड से जब हम इसको डिस्टर्ब करेंगे या फिर हम इसको अप एंड डाउन वाइब्रेट करेंगे, सो जब इस पॉइंट पी से क्रस्ट गुजर रहा होगा, दिस पॉइंट पी विल मूव अपवर्ड, जबकि इस पॉइंट पी से जब ट्रफ गुजर रहा होगा या गुजरेगा ट्रफ इस रोप वेव का, तो ये दिस पार्टिकल पी विल मूव डाउनवर्ड. सो in this way we can say that the wave in a rope is traveling in the left direction that carries energy with it, but the particles of the rope, the particle P on that rope, will only oscillate perpendicular to the direction of this wave in a rope. So this example also shows that the wave only carries energy with it without taking the particles of the medium toward itself. देन यहाँ हमारे पास एक और एग्जाम्पल मौजूद है जो कि स्प्रिंग वेव्स की है. इस स्प्रिंग को जब हमने स्ट्रेट वॉल के साथ एक एंड फिक्स कर दिया, जबकि दूसरे एंड को हमने यहाँ से होल्ड किया हुआ है. जब हम इस एंड से इसको अप एंड डाउन वाइब्रेट करके डिस्टर्ब करेंगे, सो डिस्टर्ब करने से क्या होगा, क्रस्ट एंड ट्रफ प्रोड्यूस होंगे. These crust and trough will travel toward the fixed end. This means this energy जो है वो fixed end की तरफ travel कर रही है. इस स्प्रिंग के ऊपर अगर हम कोई भी पार्टिकल अज्यूम कर लेते हैं या कोई ऑब्जेक्ट यहाँ प्लेस कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं स्प्रिंग के साथ, और उसको ऑब्जर्व करें ड्यूरिंग when the wave is traveling across this spring, so we can see that ये जो पार्टिकल P है या जो पोजीशन P है, यहाँ जो पार्टिकल्स मौजूद हैं स्प्रिंग के, वो वेव के साथ फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल नहीं कर रहे, जबकि ये सिर्फ और सिर्फ अपनी जगह पे रहते हुए परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ स्प्रिंग वेव मूव करेंगे. सो दिस एग्जांपल आल्सो शोज दैट कि जब भी वेव्स ट्रैवल करेंगी किसी मीडियम में, सो दोज वेव ओनली कैरीज एनर्जी विदाउट टेकिंग द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम. सो यहाँ हमारे पास एक लास्ट एग्जांपल मौजूद है. जैसे स्प्रिंग को हमने हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर प्लेस किया है, और इस हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर हमने यहाँ इस स्प्रिंग को होल्ड किया. जब हम स्प्रिंग को इस तरह से इस डायरेक्शन के अंदर डिस्टर्ब करेंगे या वाइब्रेट करेंगे, सो यहाँ पार्टिकल्स जो स्प्रिंग के थे at a certain position, the particles will come close together, and after some time the particle will move away from each other. So the wave carries energy in this direction, while the particles of this spring will oscillate back and forth along the direction of wave. सो यहाँ इस एग्जाम्पल के अंदर भी पार्टिकल्स अपनी जगह पर रहते हुए, फिक्स पोजीशन पर रहते हुए टू एंड फ्रो ऑस्किलेट करेंगे विदाउट मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ वेव. सो दिस शोज दैट जब भी किसी मीडियम से वेव पास होगी, दैट वेव ओनली कैरीज एनर्जी विद इट विदाउट टेकिंग द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम टुगेदर विद द वेव. सो चलिए अब शुरू करते हैं हम 2016 पेपर 2, and the question we are solving is simple harmonic motion and waves. So question number 1 जो हमारे पास है, a graph of displacement versus time for an oscillating system is shown below. तो यहाँ हमारे पास एक ग्राफ मौजूद है जो कि डिस्टेंस और टाइम के दरमियान है, और इस ग्राफ को अगर हम देखें तो यहाँ A रिप्रेजेंट कर रहा है एम्पलीट्यूड को और T रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को, और टाइम के साथ साथ इस वेव को अगर हम ऑब्जर्व करें तो इस वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज हो रहा है. सो if we can recall the phenomena in which the amplitude of the wave decreases with time, so this shows that the motion of the wave is damped, or this type of vibration or this type of oscillation is called डैम्प ऑस्किलेशन. डैम्प ऑस्किलेशन में एक वाइब्रेटिंग बॉडी का जो एम्पलीट्यूड है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज होता रहता है.
सो पार्ट ए को अगर हम देखें, स्टेट द टाइप ऑफ ऑस्किलेटिंग सिस्टम शोन इन द डायग्राम। सो जैसे कि मैंने वहाँ डायग्राम के ऊपर लिखा हुआ है कि दिस टाइप ऑफ ऑस्किलेशन और वाइब्रेशन इज कॉल्ड डैम्प वाइब्रेशन। तो यहाँ इसका आंसर आ जाएगा डैम्प वाइब्रेशन। इसी तरह से इस क्वेश्चन का पार्ट बी को अगर हम देखें 1 मार्क के लिए, सो क्वेश्चन इज such that what does the graph suggest? So the graph suggests that the wave amplitude of the wave is decreasing with respect to time. So यहाँ जैसे कि मैंने यहाँ आंसर को शो किया है दैट जैसे मैंने अभी कहा कि एम्पलीट्यूड जो है वो ग्राफ के में हमें नज़र आ रहा है कि टाइम के साथ साथ डिक्रीज़ हो रहा है। इसके बाद अगर हम थर्ड पार्ट की तरफ देखें दैट इज़ ऑफ 2 मार्क, व्हाट आर द रीज़न और द फिनोमिना शोन इन द ग्राफ बाय मेंशनिंग 2 पॉइंट्स। सो यहाँ मैंने एम्पलीट्यूड के डिक्रीज़ होने के कुछ रीज़न्स मेंशन किए हैं कि हर वाइब्रेटिंग बॉडी में कहीं ना कहीं कोई फ्रिक्शन फोर्स मौजूद होती है जो कि वाइब्रेटिंग बॉडी के मोशन को रिड्यूस करती है, और कोई रीस्टोरिंग फोर्स भी कह सकते हैं हम जो कि उस वाइब्रेटिंग बॉडी या ऑस्किलेटिंग बॉडी को मेन पोजीशन की तरफ लेकर आती है। और इस तमाम प्रोसेस के दौरान एम्पलीट्यूड भी डिक्रीज़ होता है कि वाइब्रेटिंग बॉडी का, और जो टोटल एनर्जी होती है एक वाइब्रेटिंग बॉडी की दैट इज़ द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। सो उस टोटल एनर्जी का कुछ पार्ट वेस्ट हो जाता है टू ओवरकम द रेजिस्टिव फ्रिक्शनल फोर्स, जिसकी वजह से इवेंचुअली एक वाइब्रेटिंग बॉडी एक पॉइंट पे आके एक सर्टेन टाइम के बाद स्टॉप हो जाती है। So here we have the question of 2015 simple harmonic motion and wave. A transverse wave is shown in the diagram. तो ये हमारे पास एक वेव की डायग्राम मौजूद है, और ये जो डायग्राम है हमारे पास इस डायग्राम के अंदर हमें कहा गया है कि एक वाइब्रेटिंग बॉडी जिसकी फ्रीक्वेंसी है 10 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 10 हर्ट्ज, और वेलोसिटी और टाइम पीरियड ये दो चीज़ें जो कि हमें मालूम करनी है, वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड एंड टाइम पीरियड, एंड वी हैव टू एक्सट्रैक्ट द डेटा फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन, और साथ साथ हमें जो आंसर है वो मेंशन करना है इन एसआई यूनिट। ओके, सो एक्स एक्सिस पे यहाँ जो हमारे पास सेंटीमीटर के अंदर चीज़ मौजूद है इट इज़ द वेवलेंथ, और यहाँ जो वाई एक्सिस पे सेंटीमीटर में हमारे पास गिवन है इट इज़ द एम्पलीट्यूड। सो डेटा अगर हम एक्सट्रैक्ट करेंगे तो डेटा में हम नोट कर लेते हैं दैट फ्रीक्वेंसी इज़ 10 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी इस वेव की है 10 हर्ट्ज, और वेवलेंथ लैम्डा जो कि हमें गिवन नहीं है but we can calculate the wavelength. So this is the crust and this is the crust. We know that the distance between two consecutive crusts is called wavelength. So ये हमारे पास wavelength given है जो कि 5 सेंटीमीटर से शुरू हो रही है और 25 सेंटीमीटर पर एंड हो रही है। सो इस तरह से we can say that 20 सेंटीमीटर is the length of the wave, और SI सिस्टम के अंदर अगर हम बात करें तो it is equal to 0.2 मीटर्स। सो यहाँ हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, सो वेलोसिटी हमारे पास इक्वल होती है v इक्वल्स टू लैम्डा एफ। So value of lambda is 0.2 and the frequency is 10. So in this way velocity of this transverse wave comes out to be 2 meters per second. तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का एक पार्ट सॉल्व हो गया। इसी तरह से जब हमें टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है दैट इज़ इक्वल टू 1 ओवर फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी हमारे पास 10 हर्ट्ज है, so 1 over 10 will be equals to time period that is equals to 0.1 second. So 0.1 second हमारे पास time period आ गया। So these are the two things जो कि हमें यहाँ पर मालूम करनी थी। Then we have another ERQ from this chapter simple harmonic motion and waves. So first question के अंदर पूछा गया है कि name the given instrument। यहाँ हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट मौजूद है, और सबसे पहले तो हमें इस इंस्ट्रूमेंट का
यहाँ पर नाम बताना है। सो द इंस्ट्रूमेंट गिवन हियर एज वी कैन सी कि हमारे पास एक ग्लास की ट्रे मौजूद है जिसमें ऊपर लैंप लगा हुआ है, एक वाइब्रेटर है। सो अगर हम अपने चैप्टर को रिकॉल करें तो उस चैप्टर में हमने स्टडी किया था दैट दिस इंस्ट्रूमेंट इज़ द रिपल टैंक। रिपल टैंक की हमारे पास एक फिगर मौजूद है और रिपल टैंक एक ऐसी डिवाइस है जिसको हम यूज़ करते हैं टू प्रोड्यूस वाटर वेव्स एंड स्टडी देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ हमें कहा गया है कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिफ्रैक्शन आर द प्रॉपर्टीज ऑफ वेव विद द हेल्प ऑफ गिवन इंस्ट्रूमेंट। इस इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंग हमें डिस्क्राइब करना है किसी भी दो प्रोसेस को। सबसे पहले रिफ्लेक्शन को अगर हम देखें तो रिफ्लेक्शन इज द फिनोमेना इन अ रिपल टैंक व्हेन इंसिडेंट वाटर वेव स्ट्राइक्स एन ऑब्स्टिकल प्लेस्ड एट अ सर्टेन एंगल, और जब उसके ऊपर स्ट्राइक करती हैं वाटर वेव्स तो वो बाउंस बैक हो जाती है बाय मेकिंग द सेम एंगल। इस फिनोमेना को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो यहाँ हम आंसर में रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन लिख सकते हैं और साथ साथ इसको एक्सप्लेन इस तरह से कर सकते हैं कि हमने एक ऑब्स्टेकल को एक सर्टेन एंगल पे यहाँ प्लेस कर दिया इन सच अ वे दैट सम पार्ट ऑफ दिस ऑब्स्टेकल इज अंडर द लिक्विड एंड हाफ ऑफ द पोर्शन ऑफ दैट ऑब्स्टेकल इज अबव द सरफेस ऑफ वाटर। तो वाटर वेव जब इसके ऊपर टकराएंगी तो टकराने के बाद बाउंस बैक हो जाएंगे विद द सेम एंगल। कीपिंग वन थिंग इन माइंड दैट ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वेव के, वेलोसिटी, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, तो ये तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स इस इंसिडेंट वेव्स के और रिफ्लेक्टेड वेव्स के सेम रहते हैं, इनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये वो फिनोमेना है जो कि हम रिपल टैंक की मदद से ऑब्जर्व कर सकते हैं। देन हमारे पास सेकेंड फिनोमेना है दैट इज़ द रिफ्रैक्शन, और इसमें हमने ऑब्स्टेकल को इस तरह से प्लेस किया कि वो कम्प्लीटली डिप हो जाएगा इस रिपल टैंक के अंदर, और इस तरह से हमारे पास दो तरह के रीजन फॉर्म हो जाएंगे। वन इज़ द डीप रीजन जहाँ वाटर की डेप्थ ज़्यादा है, और ये शैलो रीजन जहाँ वाटर की डेप्थ कम है। वाटर वेव जब डीप रीजन से ट्रैवल करके शैलो रीजन में आएगी तो वाटर की जो स्पीड है वो डिपेंड करती है डेप्थ के ऊपर, डेप्थ ऑफ वाटर। वेलोसिटी ऑफ द वाटर वेव्स डिपेंड्स ऑन डेप्थ। जैसे ही वाटर वेव्स डीप रीजन से शैलो रीजन की तरफ मूव करेंगी, मैं यहाँ नोट भी कर देता हूँ, डीप रीजन से शैलो रीजन की तरफ जब वाटर वेव्स मूव करेंगी तो इससे क्या होता है कि वाटर की स्पीड डिक्रीज़ हो जाती है, वेलोसिटी डिक्रीज़ हो जाती है, और साथ साथ वेवलेंथ भी डिक्रीज़ हो जाती है, जबकि जो फ्रीक्वेंसी है वो हमेशा सेम रहती है, दैट इज़ दी फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटर। और स्पीड में चेंज आने की वजह से वाटर वेव जो है वो बैंड हो जाएंगी, एंड दिस बेंडिंग फ्रॉम डेंस टू फ्रॉम डीप टू शैलो रीजन इज टूवर्ड्स दी नॉर्मल की तरफ ये वाटर वेव्स बैंड हो जाएंगी विद द डिक्रीज इन वेलोसिटी एंड डिक्रीज इन वेवलेंथ। इस फिनोमेना को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं, द बेंडिंग ऑफ वाटर वेव्स व्हेन पासिंग फ्रॉम डीप टू शैलो रीजन, और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। इसी तरह से जब वाटर वेव्स डीप रीजन से शैलो रीजन की तरफ मूव करेंगी तो वाटर वेव्स की जो स्पीड और वेवलेंथ है वो अगेन इंक्रीज हो जाएगी, एंड वंस अगेन डेप्थ में चेंज आने की वजह से वाटर वेव्स की जो डायरेक्शन है वो भी चेंज हो जाएगी। व्हेन वाटर वेव्स ट्रैवल फ्रॉम शैलो टू डीप रीजन, द वाटर वेव बेंड्स, and this time the bending is away from the normal। और साथ साथ कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें तो वेलोसिटी ऑफ द वेव इंक्रीजेस with wavelength also increases while the frequency remains same। ये प्रोसेस है रिफ्रैक्शन का जिसमें वाटर वेव्स की जो स्पीड है डिपेंड करती है डेप्थ पे, और हमने ऑब्स्टेकल को इस तरह से प्लेस किया है कि हमारे पास डेप्थ में चेंज आ रहा था, और दिस डेप्थ में चेंज आने की वजह से वाटर वेव्स बेंड होंगी, और बेंड होने के साथ साथ वेलोसिटी और वेवलेंथ भी चेंज हो जाएंगी while फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। लास्ट फिनोमेना है हमारे पास दैट इज़ द डिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स, और इस डिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स के प्रोसेस में कुछ इस तरह से होता है कि हमने दो ऑब्स्टिकल्स को प्लेस कर दिया इन सच अ वे दैट देयर इज़ अ
tiny gap or minor gap between these two obstacles. और जब वाटर वेव्स इन दो ऑब्स्टिकल्स के दरमियान जो गैप है उससे टकराती हैं, वाटर वेव जब शार्प एजेस से टकराती हैं, तो इस टकराने की वजह से वाटर वेव्स स्प्रेड हो जाती हैं इन द सेमी सर्कुलर वेव्स. सो इस स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स को हम कहते हैं डिफ्रैक्शन. और इस प्रोसेस के दौरान वन थिंग इज टू बी noted that the wavelength should be comparable or nearly equal to the distance or gap between these two obstacles. इन दो स्लिट्स के दरमियान या इन दो ऑब्स्टिकल्स के दरमियान का जो गैप है वो अप्रॉक्सीमेटली वेवलेंथ के बराबर होना चाहिए. सो टू ऑब्जर्व द फिनोमेना ऑफ डिफ्रैक्शन. सो ये मैंने तीनों प्रोसेस को शॉर्ट के अंदर डायग्राम के थ्रू मेन पॉइंट्स यहाँ पर नोट करवाएं. और इन्हीं पॉइंट्स को अगर हम कंप्लीट सेंटेंस की फॉर्म में अगर यहाँ नोट करें, सो वी कैन कंस्ट्रक्ट द कंप्लीट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. So here we have the next question from 2014 past paper. So the given diagram shows a wave traveling along a slinky spring. So what we have to do, we have to identify and define the types of wave traveling in that spring, and we have to also name the region given in this space. So as we can see, यहाँ जो हमारे पास वेव फॉर्म हो रही है वो एक स्प्रिंग में फॉर्म हो रही है. और इस तरह की वेव फॉर्म होगी जब हम स्प्रिंग के इस एंड को इस तरह से ऑस्किलेट करें कि हम इन द डायरेक्शन ऑफ स्प्रिंग इसको पुश करें, देन हम इसको यहाँ इस डायरेक्शन में पुल करें. तो यहाँ इस तरह से अगर हम इस रीजन को देखें फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ स्प्रिंग के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से करीब हैं. जबकि अगर हम इस रीजन को देखें तो यहाँ इस रीजन में स्प्रिंग के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से दूर हैं. सो इन अ वे वी कैन से दैट जहाँ रीजन में स्प्रिंग के अंदर जिस रीजन में मीडियम के पार्टिकल्स एक दूसरे से करीब हैं उस रीजन को हम कहते हैं कंप्रेशन. कंप्रेशन फॉर्म हो रहा है यहाँ पर बिकॉज यहाँ मीडियम के पार्टिकल्स आर क्लोज टुगेदर. देन दूसरा जो रीजन जहाँ मीडियम के पार्टिकल्स या इस स्प्रिंग के जो रिंग्स हैं वो एक दूसरे से दूर दूर हैं, इस रीजन को हम कहते हैं दिस इज द रेयरफैक्शन. तो यहाँ इस स्प्रिंग के अंदर कंप्रेशन और रेयरफैक्शन फॉर्म हो रहे हैं, तो हमने इन रीजन्स को आइडेंटिफाई कर दिया. और साथ साथ हमें यहाँ पर वेव को भी डिफाइन करना है कि विच वेव इज फॉर्म्ड हियर. सो वी नो दैट द वेव इन विच कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शंस आर फॉर्म्ड इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल वेव. लॉन्गिट्यूडनल वेव यहाँ पर फॉर्म हो रही है जिसे हमें यहाँ पर डिफाइन भी करना है. तो अभी हम यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं. सो यहाँ हमने डेफिनेशन मार्क कर दी है लॉन्गिट्यूडनल वेव की, दैट दिस इज द type of mechanical wave in which particles of the medium move to and fro or back and forth along the direction of wave or the parallel to the direction of wave. ऐसी वेव जो कि मीडियम से गुजर रही हो और उस मीडियम के पार्टिकल्स along the direction of wave to and fro oscillate करें, तो ऐसी वेव को हम longitudinal wave कहते हैं. Okay, so here we have another question from this chapter, simple harmonic motion and wave. So let's see this question part A. How can the wave in a ripple tank to be made to travel more slow, and when this happens what will be its effect on frequency and wavelength of the wave. So यहाँ अगर हम क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन के अंदर कहा जा रहा है कि किस तरह से हम वाटर वेव्स की जो स्पीड है उसको हम स्लो कर सकते हैं. So one thing we can recall is that वाटर की जो स्पीड है वो प्रोपोर्शनल होती है टू द डेप्थ ऑफ द वाटर. सो डेप्थ के अंदर जब हम चेंज लाएंगे तो उससे वाटर की स्पीड में भी चेंज आएगा. सो फ्रॉम दैट वी कैन रिकॉल अ प्रोसेस इन अ रिपल टैंक दैट इज़ नोन एज रिफ्रैक्शन. हम इस प्रोसेस को रिकॉल कर सकते हैं. इस प्रोसेस में क्या होता है कि हम अपनी
रिपल टैंक में एक ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देते हैं इन सच अ वे that that object or that obstacle creates two different depth inside the water. तो हमने ऑब्स्टेकल को प्लेस कर दिया और ये हमारे पास वाटर लेवल मौजूद है। तो एज यू कैन सी कि ये वाला जो पोर्शन है वाटर का, इट इज़ द डीप रीजन and this part of the water is the shallow region. एक रीजन में इस रिपल टैंक में वाटर की डेप्थ कम है और एक रीजन में वाटर की डेप्थ ज़्यादा है। अगर हम इस पॉइंट के ऊपर वाटर के सरफेस के ऊपर वाइब्रेटर की मदद से यहाँ डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करेंगे, सो व्हाट विल हैपन दैट वाइब्रेटर will produce some disturbance on the surface of the medium, जिसकी वजह से जब वाटर वेव्स ट्रैवल करेंगी इस वाटर के सरफेस के ऊपर, तो वाटर वेव्स ट्रैवल करेंगी इस, लेट्स से ये हमारे पास वाटर वेव्स हैं जो कि ट्रैवल कर रही हैं डीप रीजन में। जैसे ही वो एंटर होगी इनटू द शैलो पार्ट ऑफ दिस रिपल टैंक, सो व्हाट विल हैपन्स कि डेप्थ कम हो गई और डेप्थ के कम होने से स्पीड भी स्लो हो जाएगी इस वाटर वेव्स की। सो when water wave traveling from deep region to the shallow region, डीप रीजन से शैलो रीजन के अंदर जब वाटर वेव्स ट्रैवल कर रही हैं, सो इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस एंड due to decrease in velocity the water waves bends and this bending occurs towards the normal. Water waves हमेशा towards the normal bend होगी when they are traveling from deep to shallow region, and due to decrease in the velocity the wavelength of the wave also decreases while the frequency of this water wave will remain constant. Water waves की जो frequency है वो कांस्टेंट रहेगी। सो अगर यहाँ मैं इस वेव को फर्दर कंटिन्यू करूँ तो वाटर वेव्स कुछ इस तरह से ट्रैवल करेंगी। तो एज यू कैन सी यहाँ वाटर वेव्स की जो लेंथ है वो डिक्रीज हो गई है, वाटर वेव्स का जो लैम्डा है वेव लेंथ है वो डिक्रीज हो गई है। देन अगेन शैलो टू इस डीप रीजन के अंदर ट्रैवल करते हुए वाटर वेव्स वंस अगेन फास्ट मूव करेंगी और जो वेव लेंथ है वो भी साथ साथ इंक्रीज हो जाएगी। तो सवाल के अंदर हमसे पूछा गया था कि हम किस तरह से स्लो कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने एक्सप्लेन किया कि वाटर रिपल टैंक में जब वाटर वेव्स को डीप टू शैलो रीजन में ट्रैवल करवाया जाए तो वाटर वेव्स स्लो हो जाएंगी, और साथ साथ हमें पूछा गया है कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो यहाँ मैंने मेंशन कर दिया कि इस प्रोसेस के दौरान जो कि रिफ्रैक्शन है, वेवलेंथ और वेलोसिटी दोनों डिक्रीज हो जाएंगी जबकि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी। तो इन्हीं सारे मेन पॉइंट्स और इन्हीं सारे बुलेट पॉइंट्स को यूज़ करते हुए वी कैन कंस्ट्रक्ट आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन पार्ट ए फॉर 5 मार्क्स। Let's see another question from simple harmonic motion and wave. A, B, C, D are the given figure represent the particles of a medium through which wave is passing continuously in the direction of arrow. So यहाँ हमारे पास एक एरो शो किया गया है जो कि दिखा रहा है वेव की डायरेक्शन। वेव इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है और ये जो ब्लैक सर्कल्स यहाँ मौजूद हैं, these circles represents the particles of the medium. So we have to define the following two types of waves, that what will occur or what will happen to these particles when the wave is traveling along this medium. So transverse wave को define करते हैं। We know that these transverse and longitudinal waves are mechanical waves that always travel through a medium.
जब भी वेव किसी मीडियम से ट्रैवल करती है तो मीडियम के पार्टिकल्स को ऑस्किलेट करवाती है, मीडियम के थ्रू एनर्जी को कैरी करती है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. बट वन थिंग शुड बी नोटेड that particles of the medium do not travel along the direction of wave. पार्टिकल्स जो मीडियम के हैं वो वेव के साथ ट्रैवल नहीं करते, बल्कि अपनी फिक्स पोजीशन पे रहते हुए सिर्फ और सिर्फ ऑस्किलेट करते हैं. सो वाटर वेव्स जब मीडियम से ट्रैवल करेंगी और पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम को वाइब्रेट करवाएगी, जिस डायरेक्शन में पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे उसके अकॉर्डिंग वी कैन डिफाइन दीज टू टाइप्स ऑफ वेव दैट आर ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल. सो एज यू कैन सी ट्रांसवर्स वेव की डेफिनेशन मैंने यहाँ पर नोट की है, दैट टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव इन विच particles of the medium oscillate perpendicular to the direction of wave. और इसी चीज़ को मैंने एक फिगर के थ्रू यहाँ एक्सप्लेन किया है कि वेव एक ट्रैवल कर रही है इन अ मीडियम जहाँ पर पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम जो है वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव ऑस्किलेट कर रहे हैं. सो एज यू कैन सी यहाँ मैंने लॉन्गिट्यूडनल वेव को डिफाइन किया है व्हेन particles of the medium travel parallel to the direction of wave or to and fro along the direction of wave. तो इस तरह की वेव longitudinal wave कहलाती है, जिसको मैंने यहाँ डायग्राम के थ्रू भी रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है, that this is the direction of our longitudinal wave. इस डायरेक्शन में हमारी वेव ट्रैवल कर रही है, एनर्जी कैरी कर रही है, और ए बी सी डी और कुछ जो पार्टिकल्स हैं मीडियम के वो इस एरो की डायरेक्शन में जो कि ए बी सी डी के साथ मैंने ड्रॉ किए हैं, इस डायरेक्शन के अंदर पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम ट्रैवल कर रहे हैं. तो इस तरह से हमने लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव को डिफाइन किया और साथ साथ यहाँ इसकी डायग्राम के थ्रू भी उसी बात को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की. So here we have another question from simple harmonic motion and wave. The question is, what type of motion is exhibited in the given figure? So सबसे पहले तो हमें इस मोशन को आइडेंटिफाई करना है, the type of motion. सो एज वी कैन सी टाइप ऑफ मोशन जब हम आइडेंटिफाई करेंगे तो यहाँ डायग्राम में हमें नज़र आ रहा है कि दिस इज़ आर सिंपल पेंडुलम. एक सिंपल पेंडुलम हमारे पास यहाँ ड्रॉ किया हुआ है और इस सिंपल पेंडुलम की 3 डिफरेंट पोजीशंस हैं. दिस पोजीशन ए इज़ द एक्सट्रीम पोजीशन और दिस पोजीशन बी इज़ द एक्सट्रीम पोजीशन और पोजीशन ए हमारे पास मीन पोजीशन मौजूद है. सो द फर्स्ट टॉपिक जो कि हमने इस चैप्टर के अंदर स्टडी किया था, दैट द मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज़ सिंपल हार्मोनिक मोशन. जो मोशन है हमारा सिंपल पेंडुलम का वो SHM पजेस करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन पजेस करता है, बिकॉज जो बेसिक कंडीशंस और बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के, वो तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिस्ट करते हैं इन आर सिंपल पेंडुलम. Then write any 3 characteristics of this type of motion. So simple harmonic motion के कुछ basic characteristics हमें यहाँ पर mention करने. So first of all, जो भी simple harmonic motion body possess करती है, the acceleration is always directly proportional to the displacement from the mean position, with a negative sign that shows that the acceleration is always directed towards the mean position. एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है. तो यहाँ नेगेटिव साइन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को शो कर रही है. और सिंपल पेंडुलम को जितना ज़्यादा डिस्प्लेस करेंगे हम मीन पोजीशन से, मतलब ये कि अगर एक्सट्रीम पोजीशन मीन पोजीशन से जितना ज़्यादा दूर होगी, उस पेंडुलम के अंदर एक्सेलरेशन भी उतनी ज़्यादा होगी और जो डायरेक्शन है सिंपल पेंडुलम की एक्सेलरेशन की वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होगी. इसके अलावा
जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस सिंपल हार्मोनिक मोशन के एट मेन पोजीशन पर हमेशा बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी है वो हमेशा मैक्सिमम होते हैं, और साथ साथ इस पेंडुलम की पोटेंशियल एनर्जी और हाइट ये दोनों जो है वो ज़ीरो होते हैं। और साथ साथ अगर हम फोर्स और एक्सेलरेशन की बात करें तो मेन पोजीशन पे फोर्स और एक्सेलरेशन ज़ीरो होती हैं, बिकॉज एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट एट मेन पोजीशन इज ज़ीरो, सो इन दिस वे फोर्स एंड एक्सेलरेशन आर ऑल्सो ज़ीरो। सिमिलरली थर्ड कैरेक्टरिस्टिक हम यहाँ मेंशन करते हैं दैट एट एक्सट्रीम पोजीशन पर इस वाइब्रेटिंग बॉडी की काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी ये दोनों ज़ीरो होते हैं, जबकि पोटेंशियल एनर्जी और हाइट ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक एक वाइब्रेटिंग बॉडी के मैक्सिमम होंगे, और फोर्स और एक्सेलरेशन ये दोनों भी एक्सट्रीम पोजीशन पर मैक्सिमम होते हैं। तो ये वो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि हर उस बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करती हैं जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन पजेस कर रही हो। इसी तरह से अगर लेट से बॉडी ट्रैवल कर रही है, वाइब्रेटिंग बॉडी मूव कर रही है फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन, तो इन कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर क्या चेंज आता है वो भी देख लेते हैं हम। दैट काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी ये दोनों जो है वो एक मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे जाते हुए डिक्रीज हो जाते हैं, जबकि पोटेंशियल एनर्जी और हाइट ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पर जाते हुए इंक्रीज होंगे, जबकि फोर्स और एक्सेलरेशन ये दोनों ये दोनों क्वांटिटीज़ भी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाते हुए इंक्रीज हो जाएंगी। एंड लास्टली जब वाइब्रेटिंग बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सट्रीम पोजीशन से ट्रैवल कर रही हो टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, सो काइनेटिक एनर्जी एंड वेलोसिटी ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक ये दोनों प्रॉपर्टीज़ वाइब्रेटिंग बॉडी की इंक्रीज हो जाएंगी, जबकि पोटेंशियल एनर्जी और हाइट ये दोनों डिक्रीज होंगी एक्सट्रीम से मीन की तरफ ट्रैवल करते हुए। और force and acceleration these two quantities will also decrease। तो यहाँ मैंने वो तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन कर दिए हैं जो कि हर उस वाइब्रेटिंग बॉडी के अंदर मौजूद होने चाहिए जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन पजेस करती है, जिसमें सबसे जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज़ दी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो जिसमें हमने कहा कि एक्सेलरेशन is always directed towards the mean position and it is directly proportional to negative of displacement। So यहाँ हमारे पास एक और क्वेश्चन मौजूद है फ्रॉम 2012 की UEB पास पेपर, और यहाँ इस क्वेश्चन में हमारे पास एक ट्रांसवर्स वेव की डायग्राम मौजूद है जिसमें एक्स एक्सिस पे हमारे पास वेवलेंथ मार्क की हुई है, दिस इज द वेवलेंथ, और वाई एक्सिस पे हमारे पास मार्क किया हुआ है एम्पलीट्यूड। दोनों जो है वो सेंटीमीटर्स के अंदर मौजूद हैं। अब देखते हैं सवाल के अंदर क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड। तो सबसे पहले तो हमें एम्पलीट्यूड मालूम करना है, देन वी हैव टू फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द वेव, और साथ साथ अगर हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है 10 हर्ट्ज, सो हमें मालूम करनी है वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड। सो ओवरऑल दिस क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 5 मार्क्स। तो सबसे पहले तो हम एम्पलीट्यूड यहाँ से मालूम करते हैं। एम्पलीट्यूड को अगर हम रिकॉल करें, सो एम्पलीट्यूड इज एक्चुअली द हाइट ऑफ द क्रस्ट और द हाइट ऑफ द ट्रफ। तो एज वी कैन सी हमारी जो क्रस्ट की हाइट है वो 2 सेंटीमीटर है, सो एम्पलीट्यूड हमारा हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, और एसआई सिस्टम में अगर हम बात करें तो इट विल बी 0.02 मीटर्स।
ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। देन हमें वेवलेंथ मालूम करनी है। सो वेवलेंथ का मतलब होता है एक वेव की कंप्लीट लेंथ। एक वेव की जो कंप्लीट लेंथ होती है उसे हम वेवलेंथ कहते हैं। और हम ये भी कह सकते हैं कि एक क्रस्ट से लेकर दूसरे क्रस्ट तक का जो फासला है, इस डिस्टेंस को हम वेवलेंथ कहते हैं। सो एज वी कैन सी, जो क्रस्ट है वो आ रहा है सबसे पहले 5 सेंटीमीटर पे, और अगला क्रस्ट लाई कर रहा है 25 सेंटीमीटर्स पर। सो दोनों क्रस्ट के दरमियान का जो फासला है वो हमारा हो जाएगा 20 सेंटीमीटर्स इन एसआई सिस्टम। तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा 0.2 मीटर्स। देन हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है 10 हर्ट्ज, एफ इज इक्वल टू 10 हर्ट्ज। ये हमारे पास सवाल में पहले से गिवन थी। एंड फाइनली वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ दिस वेव। सो वी नो दैट वेव इक्वेशन इज इक्वल्स टू वेवलेंथ मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी। दोनों के क्वांटिटीज हमारे पास यहाँ मौजूद हैं। वेवलेंथ ऑफ द वेव इज 0.2 and the frequency is 10 Hz. So in this way, velocity of the wave will become 2 meters per second. So ये हमारे पास तमाम आंसर्स आ गए जो कि हमें क्वेश्चन के अंदर पूछे गए थे। एम्पलीट्यूड इज 0.02 meters, wavelength is 0.2 meters, and finally the velocity is 2 meters per second. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to